Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल में 17 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता, चुनाव आयोग से मिलने के बाद सुकांत मजुमदार ने कहा। दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में सदस्यता अभियान किया शुरू, बांग्लादेश पर की कड़ी टिप्पणी। देश पहले कारोबार बाद में, अलीपुरद्वार में होटल और रेस्टोरेंट के दरवाजे बांग्लादेशियों के लिए बंद। सिलीगुड़ी में 1.5 किलो विदेशी सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, सोने की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में 17 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 17,14,066 फर्जी मतदाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने एक ही व्यक्ति का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में डाला है। सुकांत मजुमदार ने बताया कि इनमें से 34,000 मतदाताओं के EPIC नंबर फर्जी है और 16 लाख अधिक मतदाताओं के नाम, पते और परिवार के नाम एक जैसे हैं, लेकिन EPIC नंबर अलग अलग है। उन्होंने चुनाव आयोग से फर्जी नामों को हटाने का अनुरोध किया। কমিশন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনের সাথে আমরা আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন তাদের সামনে দিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কর্মীরা যে ইলেকটোরাল রোল অর্থাৎ ভোটার লিস্ট তার থরো অ্যানালাইসিস করেছে। অ্যানালাইসিস করে আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গের যে ভোটার রোল তাতে প্রায় 17 লক্ষ ডুপ্লিকেট নাম পেয়েছি। 17,14,066টি, আমি আবার রিপিট করছি, 17,14,066টি ডুপ্লিকেট নাম পাওয়া গেছে। একে এই যে নামগুলো অর্থাৎ যাদেরকে আমরা ডুপ্লিকেট নাম বলছি, মানে একই জিনিস দুবার পাওয়া গেছে, তাকে 2 ভাগে ভাগ করেছি আমরা। টাইপ এ যাদের এপিক নাম্বার সেম, এরকম নাম পাওয়া গেছে হচ্ছে 32,886, অর্থাৎ 32,000 নাম, 886 নাম, মানে প্রায় 33,000 নাম আমাদের ভোটার লিস্টে আছে, যাদের নাম 2 জায়গায় আছে ভোটার লিস্টে, যাদের এপিক নাম্বার 1। दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में सदस्यता अभियान किया शुरू, बांग्लादेश पर की कड़ी टिप्पणी। उत्तर बंगाल दौरे पर आए भाजपा नेता दिलीप घोष ने आज सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट में सदस्यता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में 50 लाख नए सदस्य बनाना है। CBI द्वारा संजीव घोष को जमानत दिए जाने के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि CBI पर दबाव है और समय की कमी के कारण कभी कभी चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को यह याद रखना चाहिए कि वह भारत पर निर्भर है और भारत से धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा नेता दिलीप घोष ने BSF जवानों से मुलाकात भी की। 48,000 কেস হয়েছে, সুমোটো কেস, ধর্ষণ, মার্ডারের 2টো সাজা হয়েছে। এটা কি রাজ্য সরকারের কাছে খুব গর্বের বিষয় আছে? আমরা নিশ্চয়ই চাই CBI হোক বা যেই এজেন্সি হোক, সেটা এই দেশের সরকারের, এই দেশের প্রশাসনের, এই দেশের টাকায় চলছে, সাধারণ মানুষের টাকায়। সাধারণ মানুষ তার উপরে ভরসা করে, সেই জন্য সেই সংস্থাগুলো বানানো হয়েছে। তারা যেন সাধারণ মানুষকে ন্যায় দেয় এবং এই ধরনের জঘন্য অপরাধের সমাধান করে, সাজা দেয়, এটা মানুষ চাইবে। না হলে হতাশা আসে। আমরাও সেদিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু ভরসা আছে CBI করবে। অনেক বড় বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পর্যন্ত জেলে যেতে হয়েছে CBI EDর জন্য। অনেক বড় বড় দেশবিরোধী চক্রান্ত মামলা ANIর জন্য সমাধান হয়েছে বা সাজা পেয়েছে বা তদন্ত চলছে। এরাই করবে, কিন্তু আজকে বেশিরভাগ জায়গায় রাজ্য সরকার যে কাজটা করছে না, অপরাধীদের সাজা দিচ্ছে না, সুরক্ষা দিচ্ছে, তার জন্য CBI EDকে সেই কাজ করতে হচ্ছে, যেটা ওদের কাজ নয়। সেই জন্য তাদের কাজের চাপের জন্য তাদের রেজাল্ট, পারফরমেন্সটা কম মনে হচ্ছে, কিন্তু এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। রাজ্য সরকারের কি সাফল্য মনে করছেন? দুটো পরপর আমি তো বললাম 48,000-এর মধ্যে যে 2টো আসে, এটাকে সাফল্য বলবেন কি? এটাকে ব্যতিক্রম বলি আমরা। চলুন।
देश पहले कारोबार बाद में। अलीपुरद्वार में होटल और रेस्टोरेंट के दरवाजे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए बंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के खिलाफ उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के होटल मालिकों ने बांग्लादेशी नागरिकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट होटल एंड रिजॉर्ट ओनर्स एसोसिएशन और अलीपुरद्वार टाउन होटल ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बाबत जिला प्रशासन को पत्र भेजकर ऐलान किया है। सिलीगुड़ी और मालदा के बाद अब अलीपुरद्वार से भी होटलों के दरवाजे बांग्लादेशी पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি যে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করার দরুন আমরা এই বাংলাদেশি ভোটারদেরকে আমরা আপাতত কিছুদিনের জন্য বয়কট রাখছি। যদি সেই সম্মানটা যদি ওরা আবার ফিরিয়ে দেয় জাতীয় পতাকার, তবে আমরা বিবেচনা করব। सिलीगुड़ी में 1.5 किलो विदेशी सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सोने की कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने सिलीगुड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो विदेशी सोने की बिस्किट के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों के नाम जेत मोहन बसाक और महेश चौधरी है। ये दोनों बांग्लादेश से सोने के 13 सिक्कों के साथ कुछ बिहार होकर किशनगंज जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई ने उन्हें धूपगुड़ी टोल गेट के पास पकड़ा। सोने की छड़ें कार के एयर फिल्टर में छिपाई गई थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 1.19 करोड़ रुपए है। दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। আমি রতন বণিক, কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের আইনজীবী। আজকে শিলিগুড়ি এসিজেএম আদালতে দুজন আসামিকে হাজির করেছে ডিআরআই শিলিগুড়ি। তাদের নাম হচ্ছে জেটমোহন বসাক, 28 বছর বয়স, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো মহেশ চৌধুরী, এর 45 বছর বয়স। তো এই জেটমোহন আর মহেশ এরা দুজনেই কিষানগঞ্জের বাসিন্দা এবং এদের সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল ডিআরআইয়ের কাছে যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সোনা কুচবিহার হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকবে এবং সেই সোনাটা মারুতি ডিজায়ার গাড়ি WB74BE6589 এই গাড়িতে করে সেটা কুচবিহারের দিক থেকে এসে কিষানগঞ্জের দিকে যাবে শিলিগুড়ি হয়ে। সেই সূত্রের ভিত্তিতে গতকাল ভোরবেলায় আমাদের ওই ধূপগুড়ির ওখানে যে হুসুডাঙ্গা টোল প্লাজা আছে সেখানে ডিআরআই নর্থ বেঙ্গল জোনাল ইউনিটের টিম ওয়েট করে এবং এই গাড়ি আসার পরে গাড়ির যারা আরোহী ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সেখান থেকে তাদেরকে স্পট সমন দেওয়া হয়। आरजीकर मामले में सीबीआई की लापरवाही पर तृणमूल नेता कुणाल घोष ने उठाए सवाल। कोलकाता के आरजीकर मामले में सीबीआई द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने के कारण अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी, जिससे सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई की जांच में समय की कमी और लापरवाही रही। চার্জশিট দিয়ে দিত, তাহলে দেয়নি কেন? তাহলে স্ট্রং তথ্য প্রমাণ নেই তাই দেয়নি, অথচ মিডিয়া ট্রায়াল হয়ে গেল। তারা প্রভাবশালী, তাদের কারা গার্ড করছে প্রভাবশালী, পুলিশ খারাপ, প্রশাসন খারাপ, সব হয়ে গেল। শুধু যে ডাক্তাররা কর্মবিরতি সরকারি জায়গায় করলেন, করে বেসরকারি জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করলেন, সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কয়েক কোটি টাকা নিজেরা প্রাইভেটে পাইয়ে দিলেন, নিজেদের পকেট ভরলেন, সেই অসাধু ডাক্তার চক্রের কোনো বিচার এখনো হলো না। संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलने के विरोध में कांग्रेस ने सीबीआई कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल मामले में मुख्य आरोपी संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलने के खिलाफ कांग्रेस ने सीबीआई कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट ने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल न होने पर दोनों को जमानत दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा और तृणमूल के बीच साठगांठ है और दोनों पार्टियां इस मामले में दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक्साइड मोड़ से निजाम पैलेस तक मार्च किया और जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। আপনারা প্রতিবাদ করছেন, আমরা দেখেছি গতকাল সন্দীপ ঘোষ এবং ওসি তারা দুজনেই বেল পেয়ে গেল। সিবিআই
অপদার্থতার জন্য কি বলবেন? দেখুন, আজকে শুভঙ্কর সরকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নেতৃত্বে সিবিআই অফিসে একটু পরেই জোরদার বিক্ষোভ হবে কংগ্রেস পার্টির তরফে। তার কারণ, মোদি ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সেটিং, ইটিং আর গেটিংয়ে বিশ্বাসী। যারা এত বড় একটা অর্গানাইজ ক্রাইম করলো, তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে বেল পেয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেল, জেল কোনো যাত্রায় কিছুতে হচ্ছে না। এই সিবিআই কেন, ইডি কেন পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র শূন্য পাচ্ছে? সারদানারদায় শূন্য পেয়েছে, সব চোটেরা রাস্তায় ঘুরছে। তাহলে তৃণমূল এবং বিজেপির ভেতরে কি এমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে উচ্চ পর্যায়ে যে মোদি ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পুরো শুয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে? এটাই তো অদ্ভুত। আজকে যে ওখানে যাবেন, ওখানে গিয়ে কি কি কর্মসূচি রয়েছে আপনাদের? শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কর্মসূচি হবে, একটু পরেই দেখতে পাবেন। আমরা কিছু স্পেশাল আইটেম নিয়ে এসেছি সিবিআইকে গিফট করার জন্য, সেগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য। सिलीगुड़ी पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का किया भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में पर्दाफाश किया और कोलकाता के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह एंटीवायरस कंपनी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए ठगी की जा रही थी। सिलीगुड़ी थाने और पांडरिंगी चौकी की पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर देर रात छापेमारी की, जिनमें 4 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में एमडी अरशद, राजा फिरोज खान, राकेश सौ आदि शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल, नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरू वाले
बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। आरजीकर मामले में संदीप घोष की जमानत के विरोध में एसयूसीआई का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में आरजीकर मामले में आरोपी संदीप घोष को जमानत मिलने के विरोध में एसयूसीआई ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर अभियान चलाया। सीबीआई द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारण संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई। एसयूसीआई कार्यकर्ताओं ने करुणामयी से मार्च करते हुए सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी में 25 भैंसों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी फांसीदेवा थाने की पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर 25 भैंसों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कंटेनर को रोका और तलाशी ली, जहां 25 भैंसें मिली। आरोपियों में पुलिस ने वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हसरत और शकील उत्तर प्रदेश के निवासी है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर मामले की जाँच कर रही है। कोलकाता के रविंद्रपल्ली में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, एक गिरफ्तार। कोलकाता के केस्टपुर रविंद्रपल्ली में एक महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बागुई घाटी इलाके में गृहिणी अभिक्ता देशा का शव घर के अंदर से बिस्तर पर गले में फंदा लगे पाया गया था। मृतक के पति बुद्धदेव शाह ने घर लौटने पर पत्नी का शव देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। पुलिस ने पति से पूछताछ किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस मामले में पुलिस ने कौशिक शाह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो महिला से फेसबुक के जरिए संपर्क में था। সেম হবে যখনও এরকম ঘটনা আছে, আমাদের মেইন এইম টু কন্ট্রোল ক্রাইম টু দ্য ম্যাক্সিমাম এক্সটেন্ট পসিবল। আমরা আমাদের পেট্রোলিংয়ের জন্য এখানে 10টা মোবাইল টিমসও আছে। যখন আমরা কোনো ইনফরমেশন এইরকম লাইক থানাতে কোনো ইনফরমেশন পাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাটেন্ড করছি। not like from all the levels, from the thana level to senior officer level, আমরা সবাই একটা টিম একসঙ্গে কাজ করছে এটা সলভ করতে। আপনারা কতদিনের জন্য পিসি কাম? 14 days প্রেয়ার করছি আমরা। কি করেন ম্যাম? সরি, প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করছি। প্রাইভেট সেক্টর মেয়েটি কি করতেন, মানে অভিষেকটা যিনি মারা গেছেন? বিউটিশিয়ান। একটা আসে যে উড়িষ্যাতেও থাকতেন, এখানেও আসতেন, এরকম যাতায়াত ছিল না? ওটা ও কাজের জন্য। बांग्लादेश को शांति का संदेश भेजने के लिए पश्चिम बंगाल के कवियों और लेखकों की पहल। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी रोड में कवि और पर्यावरणविद दिनेश चंद्र विश्वास के आवास पर बांग्लादेश की हालिया स्थिति पर एक विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कोलकाता के फिल्म निर्देशक, कवि, लेखक, कलाकार और उत्तर बंगाल के समाज सेवी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर बांग्लादेश को शांति का संदेश भेजा और दोनों देशों के बीच मतभेद न बढ़ाने की अपील की, ताकि पुराने अच्छे रिश्ते फिर से कायम हो सके। तो যেটা আমি বলতে চাই যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে গেলে সবুজায়ন দরকার, আর সেই সাথে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ যে উদ্ভূত পরিস্থিতি, সেই ব্যাপারে আমরা চাবো যে আমাদের দুই দেশের সাথে ভ্রাতৃত্ব পূর্বের মতোই থাকবে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য, যেটা ইতিহাস হয়ে আছে। যদি কেউ এটা অস্বীকার করে,
তাহলে বলবো তাদের অজ্ঞতা বা আমাদের এই ভারতের প্রতি যে তাদের যে আমরা যা করলাম সেই বিশ্বাসভঙ্গ। আমরা চাবো যে দুই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং ভারত দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে। मालदा के रतुआ 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत पराय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला तृणमूल अध्यक्ष व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी, जिला परिषद सदस्य शमसूल हक और रतुआ 2 के अध्यक्ष रबीकुल हक और अन्य तृणमूल नेता उपस्थित रहे। शिविर में लोगों ने अपनी समस्याएं साझा की, जिन पर जनप्रतिनिधियों ने चर्चा कर समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के लिए टीम को निर्देश भी दिए गए। তৃণমূল কংগ্রেস আমরা 47 নম্বর মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যে আমাদের 11টা অঞ্চল আছে, আমরা প্রথমে এখানে শুরু করেছি এই কর্মসূচি, পরে গোটা জেলাব্যাপী আমরা করব। যে প্রত্যেকটা অঞ্চলে 4টা-5টা বুথকে নিয়ে আমরা সমস্ত মানুষকে ডাকছি, তাদের কী কী অসুবিধা আছে, কী কী উন্নয়ন এখনও তাদের হয়নি, কী কী কাজ তারা পায়নি, অর্থাৎ সমস্যার সমাধানে তৃণমূল কংগ্রেস বাড়ি বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে মানুষের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবে। এটাকে সামনে রেখে আজকে আমরা এই সভা মহারাজপুর অঞ্চলে প্রথম শুরু করেছি। আরও দুটো সভা আমাদের দুটো পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় হবে। যদিও মমতা ব্যানার্জি প্রায় 90% কাজ করে কমপ্লিট করে দিয়েছেন, তাই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি যে মানুষের আর কী কী কাজ বাকি আছে। মানুষের সাথে কথা বলছি, মানুষের সাথে আলোচনা করছি, মানুষ আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। আমরা जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में लगभग 15 से 20 हाथियों का झुंड देर रात घुस आया, जिससे स्थानीय लोग घबरा गए। हाथियों का समूह गांडोंग वन और कांजीपाड़ा बरहलिया इलाकों में घुसकर कृषि फसलों खासकर आलू को नुकसान पहुंचाया। हाथियों का दल पहले अलीपुरद्वार जिले के मालसा गांव और प्रमोद नगर होते हुए धूला गांव और तसाटी चाय बागान तक पहुंचा। स्थानीय लोग इस घटना से चिंतित हैं, क्योंकि पहले भी कभी इतना बड़ा हाथी का झुंड इलाके में नहीं देखा। हाथियों के पैरों के निशान इलाके में देखे गए और माना जा रहा है कि ये हाथी सोनाखाली जंगल से आए हैं। হাতিগুলো এই 18-20টা এরকম হবে। আচ্ছা, আর মোটামুটি ভোর 4টের দিকে। তো কতটা ক্ষতি করলো এদিকে হাতিগুলো আসার পর? হাতি তো এদিকে তো শেষ করে দিয়েছে, এই যে যেদিকে যেদিকে গেছে একদম ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেছে। আলু ক্ষেত? আলু ক্ষেত। এই যে কালকে জল দেওয়া হয়েছিল, আজকে এই পরিস্থিতি করে দিল। এটা আপনার জমি? হ্যাঁ, আমার জমি। কতটা ক্ষতি করছে আপনার জমি? এই আধা বিঘা জায়গা ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেল। এর আগে এই এলাকায় হাতি আসছিল? না, এর আগে আসেনি। এর আগে মোটামুটি 7-8 বছর আগে একবার আসছিল একটা, কিন্তু এই দল বেঁধে কোনো বছর আসেনি। আমাদের লাইফে প্রথম দল বেঁধে হাতি আসলো। দল বেঁধে আসে। কোন জঙ্গল থেকে হাতিগুলো আসতে পারে? এগুলা মনে হয় ওই যে গড়কাটা ওই ফরেস্ট থেকেই আসছে, ওই দিক দিয়ে আসছিল। তবে হাতিগুলো সকালবেলা বেরিয়ে যায়? হ্যাঁ, সকালবেলা বেরিয়ে নদী পার হয়ে। তো কতটা আতঙ্কিত আপনারা এইভাবে হাতি আসলো? হাতি আসলে তো মুশকিল। এইভাবে যদি আসে এরকম ক্ষতি করে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তো ওরা নজর রাখার দরকার। আপনারা কি ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন জানাবেন? ক্ষতিপূরণ তো এখন সরকারি ব্যাপার। আপনার নাম? নাম কবিদুল ইসলাম। এই এলাকার নাম? কবিদুল ইসলাম। এই এলাকাটার নাম? এটা হচ্ছে বারোহালিয়া, ঝাঁসালবাড়ি বারোহালিয়া। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।